special series for UPSC Prelims 2020 exam. Important topics, important geography topics for UPSC IS Prelims and Mains exam. Or in General Studies paper of UPSC Civil Services examination, geography is one of the most important sections of the prelims as well as mains exam. One can easily expect 25 to 30 questions from geography syllabus in UPSC prelims General Studies paper first. IS aspirants need a single source material, that is complete guide for their preparation in the UPSC CSE examination. This source is to brought to them to aid to achieve success in this very attempt. The material covers all trending, important and relevant facts and material of geography required to be studied by aspirants in a single booklet or in single video that is important for the UPSC Civil Services examination. We have covered only those topics which were in news or in trend in last 1 or 1.5 year. Okay, and there is a high chance to ask the questions from these topics in Civil Services prelims as well as mains exam 2020. You cannot skip these topics. First one is White Island. White Island, it is a volcano eruption in White Island of New Zealand. That's why this topic is in news. It is also known as just White Island or White Island. It is an active andesite situated east coast of the North Island of New Zealand in the Bay of Plenty. So you have to aware about the Bay of Plenty and the North Island of New Zealand, east coast of the North Island of New Zealand, because UPSC sometime ask the cities, the boundaries of the oceans, islands, mountains, which one is touching each other, etc. All the topics I will give you the overview of these topics because it is not possible to complete in detail all the topics here. So I will provide you the detailed explanation or the PDF of all these topics in the description. The link is given in description. You can click on the link and download the PDF file. The PDF covers all the topics in detail. So White Island is in New Zealand. Bay of Plenty, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ सेंट्रल इंडिया. फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ सेंट्रल इंडिया, अवंती मेगा फूड पार्क इनोग्रेटेड इन मध्य प्रदेश. ओके, सो फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ सेंट्रल इंडिया का कहाँ पे है? इट इज इनोग्रेटेड इन मध्य प्रदेश एंड पर्टिकुलर लोकेशन इज देवास डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. इसके अकॉर्डिंग जैसे आप पढ़ेंगे वैसे तो डिटेल में दे रखा है PDF फाइल में, लेकिन आपको भी जब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका सब टॉपिक भी पता होना चाहिए. एंड व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट द मेगा फूड पार्क, देन वी हैव टू बी नोन अबाउट द मेगा फूड पार्क स्कीम. ओके, which ministry launched this scheme, what was the aim of this scheme, or the scheme is based on which approach. We have to be known about these subtopics. Next is Char Dham program. Char Dham program, as its name suggests, Char Dham, and Char Dham is Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. These are the Char Dhams. Okay, so Ministry of Road Transport and Highways has informed the government about these Char Dham programs, or the minister informed in Lok Sabha, the lower house, about this program. The Char Dham program is an initiative to improve connectivity to the Char Dham pilgrimage centers in the Himalayas
and namely Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. Okay. These four ancient pilgrimage sites in Uttarakhand are known as Chota Char Dham to differentiate them from the bigger circuit of modern day Char Dham sites, namely Badrinath, Dwarka, Puri and Rameshwaram. यह आपको पता होना चाहिए कि these four ancient pilgrimage sites in Uttarakhand are known as Chota Char Dham to differentiate them from the bigger circuit of modern day Char Dham. Namely, जो modern day है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम. Okay, the works under the Char Dham Pariyojana are being implemented on engineering, procurement and construction mode of contract. ठीक है, इसके क्या फीचर्स हैं ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज इंडियाज न्यू मैपिंग एक्सरसाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ना. न्यू मैपिंग एक्सरसाइज एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस न्यू मैपिंग एक्सरसाइज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू लॉन्च ए न्यू मैपिंग एक्सरसाइज टू accommodate the needs of present times. Okay, it is very clear. Exercise to accommodate the needs of present time. The last mapping exercise in India took place nearly 200 years ago. आप समझ सकते हैं कि कब हुई थी लास्ट टाइम. 200 years ago by George Everest Survey. Okay, ये न्यू मैपिंग एक्सरसाइज इज बीइंग प्लान्ड बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन. एंड विच इज द कंट्रीज ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन? द सर्वे ऑफ इंडिया. What was the objective of this new mapping exercise? The objective is to drag India into the realm of other modern economies and digitally update maps of India. The idea is to create a highly accurate, free-to-use map layer which is available in public domain. For now, the plan is to make data public and charge a small amount for commercial use. Earlier, the data was sold. Currently, every private entity and state government has an in-house mapping efforts. For example, Flipkart uses machine learning to convert addresses into sub-regions, okay, which are essentially neighborhood names suggested by field executives. If we talk about United Kingdom, whose survey of equivalent, the Ordnance Survey, announced in 2018 to make taxpayer-funded digital map freely available for business and citizens. ताकि एक बिजनेस पर्पज़ के अलावा जो कमर्शलाइज नहीं कर रहे हैं उसके अलावा सबको फ्रीली प्रोवाइड करवाया जाए. अभी क्या है कि ये कमर्शलाइज हो गया तो कुछ मैप भी है जो लोग सोल्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना. इसके बेनिफिट्स क्या हैं. और एक चीज़ और है कि गूगल मैप्स आर कैन हेल्प इन नेविगेशन बट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल टू प्लान गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बिल्ड ए न्यू रेलवे लाइन. द न्यू सर्वे विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अभी जो गूगल मैप है वो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या कोई नई रेलवे लाइन बना रहे उसमें हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जो ये न्यू मैपिंग एक्सरसाइज है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी. दैट्स वाई these are the benefits of this new mapping exercise. Next is Kerala on alert as Maha intensifies into super cyclone of its coast. ये हम सबको पता है, केरला में एक साइक्लोन आया, साइक्लोन महा, और ये आपको पता होना चाहिए. ये व्हाट इज दिस साइक्लोन महा? The fourth cyclone this year in the Arabian Sea. It is set to intensify further into a severe cyclonic storm. The depression that had developed in the Cameroon Sea gained strength and turned into a cyclonic storm. An orange alert has already been issued in 4 districts of Kerala: Ernakulam, Thrissur, Malappuram and Kozhikode. Okay, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना.
कि एक तो ये साइक्लोन्स के नेम कैसे सजेस्ट होते हैं, कौन सा कंट्री कब नेम सजेस्ट करता है और साइक्लोन कैसे बनते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। एक डीप डिप्रेशन करके टर्म है, डीप डिप्रेशन, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। साइक्लोन से रिलेटेड टर्म है डीप डिप्रेशन। यूपीएससी कई बार पूछता है 4 ऑप्शन देकर। नेक्स्ट इज काला पानी। ये पिछले काफ़ी टाइम से चर्चा में है, 1 साल से रेगुलर चर्चा में है। ये काला पानी, इट इज ए स्मॉल एरिया ऑन द इंडिया मैप दैट borders Nepal. The new political map of India recently released by the government to account for the bifurcation of Jammu and Kashmir has triggered fresh protest over an old issue in Kathmandu and Tibet. Kalapani is a 35 square kilometer area, or where it is situated. The Kali river in the Kalapani region demarcates the border between India and Nepal. Okay, that's why it named Kala Pani, because of Kali river. And Kali river is the border between India and Nepal. While the Nepal government and political parties have protested, India has said the new map does not revise the existing boundary with Nepal. The Nepal government described India's decision as unilateral and claimed that it will defend its international border. ओके, तो ये नेपाल के साथ इश्यू है, बॉर्डर इश्यू काला पानी का, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। काली रिवर के बारे में पढ़ना और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज़रूर पढ़ लेना। यूपीएससी पूछेगा एक क्वेश्चन, आप मान के चलिए एग्जाम में आएगा, आपके मेंस या प्रीलिम्स में 100% आएगा। गायकवाड़ी डैम इस औरंगाबाद, तो जो गायकवाड़ी डैम है, इट इज़ लोकेटेड इन द गोदावरी रिवर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। The project is one of the largest irrigation project in the Indian state of Maharashtra. It is multi-purpose project. The water is mainly used to irrigation purpose or to irrigate agriculture land in the drought prone जो मराठवाड़ा रीजन है, जिसको मराठवाड़ा ड्रॉट प्रोन रीजन है, उस रीजन में वाटर सप्लाई एग्रीकल्चर और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए ये डैम बनाया गया है। It also provides water for drinking and industrial uses to nearby towns and villages and to the municipalities and industrial areas of Aurangabad and also the neighboring district Jalna also. Okay, तो ये आप याद रखना, ये डैम का पूछ सकते हैं यूपीएससी। डिलेड विड्रॉल ऑफ मानसून, ये बेसिक ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये इस डिलेड विड्रॉल ऑफ मानसून, द मानसून सीजन ऑफ 2019-20 ऑफिशियली एंडेड विथ September, बट रेनफॉल हैज कंटिन्यूड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच इंडिकेट्स द डिलेड विड्रॉल ऑफ मानसून। ओके, और व्हाट वाज द ट्रेंड फॉर 2020 इन जून जुलाई? So the trends indicate that about the delayed withdrawal of monsoon. Okay, so आप इसके बारे में जाके, और मानसून प्रेडिक्शन टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, लॉन्ग पीरियड एवरेज वगैरह, डिफिशिएंट रेनफॉल है, एक्सेस रेनफॉल है, नॉर्मल रेनफॉल है, व्हाई देयर इज ए लेट विड्रॉल ऑफ मानसून, व्हाट वाज द मानसून प्रेडिक्शन टर्मिनोलॉजी, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ITCZ जोन्स क्या होते हैं, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होते हैं, जो लो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है नियर द इक्वेटर, और सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनका क्या कनेक्शन है, थंडर स्टॉर्म वगैरह का। ये अल नीनो, ला नीनो, ये मैं आपको टर्म बता रहा हूँ जो इसके साथ एसोसिएटेड है। सुमात्रा आइलैंड है, इंडियन ओशियन है, एक IOD होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल, ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू IPCC रिपोर्ट वार्न्स ऑफ डायर थ्रेट टू ओशियन। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इट इज IPCC, in its special report underlined the dire changes taking place in ocean, glaciers and ice deposits on land and sea. The Intergovernmental
panel on climate change, the apex referee for scientific evidence on the impact of global warming. It is the apex referee. It said in its report, the special report on the ocean and cryosphere in a changing climate. तो एक ये आपको ये ध्यान रखना है, यूपीएससी कई बार सिंगल लाइन में पूछ लेता है कि स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, हु पब्लिश्ड दिस रिपोर्ट। तो ये आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, इट इज़ ए बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो इसकी रिपोर्ट है और उसने वार्न किया है। ये आपको थोड़ा सा देख लेना डिटेल में इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, इसके इंडिया के क्या कंसर्न है, हाउ टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशियंस, और भी इसके कुछ सब टॉपिक्स होंगे जो आप पीडीएफ फाइल में जाके और पढ़ लेना। पीडीएफ है जो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सेट टू गेट इट्स 7th टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। ओके, ये इसके टॉपिक से ही पता चल रहा है कि ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। एक कमेटी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइनलाइज काउंटर्स ऑफ द कोर एंड बफर एरियाज of the proposed reserve to be carved out of the रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अभी रिसेंटली उन्होंने अभी रिपोर्ट जो कमेटी बनाई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, उसने उस रिपोर्ट सबमिट किया है एंड रिसेंटली डिक्लेयर्ड द टाइगर स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट डिक्लेयर किया है, इज इंचिंग क्लोजर टू गेटिंग इट्स 7th टाइगर रिजर्व एंड नाउ इट सेट टू गेट ओके द रातापानी टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में पढ़ लेना, ये रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऑलरेडी है। ये इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अप्रोक्सीमेट 1975 और 76। आई एम टॉकिंग अबाउट रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एक्चुअली ये है जो विंध्या जो रेंज है मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है। It is popular for some special tree species like बीजासल, साज, टेंडू, खैर, इनके लिए ये फेमस है। वहाँ पे कुछ ट्री स्पीसीज हैं। नेक्स्ट, द राइजिंग थ्रेट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, ये एवरी ईयर का टॉपिक हो गया, ये हर साल ये होता है। कोरल ब्लीचिंग इसको आप जरूर पढ़ना। कोरल ब्लीचिंग क्या है, ये रिसेंट स्टडी कंडक्टेड ऑन कोरल रीफ इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन हैज फाउंड दैट हीट वाज नॉट ओनली द ड्राइवर ऑफ कोरल ब्लीचिंग बट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकेशन एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो वो सेवरल अदर फैक्टर्स क्या है वो जरूर पढ़ना। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कोरल रीफ के सिग्निफिकेंस मीन्स जैसे कोस्टल प्रोटेक्शन हो गया या हैबिटेट हो गया, और फूड रिसोर्सेज, टूरिज्म वेल्थ हो गया, मेडिकल फ्यूचर हो गया, ये कुछ सिग्निफिकेंस है। और इसके विच फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लाइक इंक्रीज्ड वाटर टेम्परेचर, ऑक्सीजन स्टारवेशन, इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, herbicides, change in salinity and extreme low tide and exposure, like these are the factors of coral bleaching। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कहाँ कहाँ पे कोरल ब्लीचिंग है ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना, कोरल रीफ के बारे में। ये नेक्स्ट, टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। Top 5 longest rivers in the world are Nile River, Amazon River, Yangtze River, Mississippi River, Yenisei River. Okay, these are the 5 longest river in the world. First one is Nile River. It is in Africa continent. Or which countries it flows through? I am talking about Nile River. Egypt, Ethiopia, Sudan, Burundi.
इन कंट्रीज से है जो नील रिवर फ्लो करती है। तो आपको ये मैप में देखना है, अच्छे से पढ़ना है कि नील रिवर किस किस कंट्रीज के थ्रू फ्लो हो रही है और कंट्रीज इट फ्लो थ्रू। ठीक है, ये पढ़ लेना आप अच्छे से। अफ्रीका में है नील रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन द बुरुंडी साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लो नॉर्थवर्ड थ्रू नदर्न ईस्टर्न अफ्रीका, इवेंचुअली फ्लोइंग थ्रू इजिप्ट एंड फाइनली ड्रेनिंग इनटू द मेडिटेरेनियन सी। तो इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है बुरुंडी है और इसका जो ड्रेनिंग पॉइंट है वो है मेडिटेरेनियन सी। और इस इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन टू कंट्रीज इजिप्ट एंड सूडान, ये ध्यान रखना आपको। और देर इज ए टू ट्रिब्यूटरीज, द ब्लू एंड द वाइट नील। ये नील जो रिवर है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड वाइट नील एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर विद द लेटर हैविंग ए ग्रेट लेंथ देन द फॉर्मर। ओके, समझे, ब्लू और वाइट नील की बात कर रहा हूं मैं। White Nile is not yet fully determined but is believed to be somewhere in Burundi or Rwanda. ठीक है, according to some reports, Lake Victoria is considered to be the source of White Nile, which is in turn fed by the Kangda River, whose two major tributaries are the in Burundi and Rwanda also. Kangda is formed at the confluence of these two rivers near the Tanzania-Rwanda border. तो आपको अफ्रीका का पूरा मैप देखना पड़ेगा जब नील रिवर की बात हो रही है, बिकॉज नील रिवर अफ्रीका में काफ़ी कंट्रीज को क्रॉस करती है। इसका जो बेसिन है इट इज़ ए ह्यूज बेसिन एंड इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कॉन्गो, केनिया ऑल्सो। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज अमेजन रिवर। अमेजन रिवर रन्स approximate 4,000 miles from the Andes to the sea. Andes mountain range का नाम सुना होगा आपने। And it is the second longest river in the world. I am talking about longest rivers, not largest river. There is a difference in longest and largest. ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है अमेजन रिवर का। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स वाटर शेड, द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इनटू द सी। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेजन रिवर। एंड द अमेजन रिवर देन कन्फ्लुएंसेज विद द अपुरिमिक रिवर whose headwaters were earlier regarded as the source of Amazon, and then other tributaries join the river downstream to form the Ucayali River, which finally confluences with the Marañón River to form the main stream of Amazon River. Okay, तो ये आपको पढ़ना है अमेजन रिवर के बारे में। नेक्स्ट इज थर्ड इज यांगत्जे रिवर। इट इज इन एशिया कॉन्टिनेंट और फ्लो इन द चाइना। Yangtze River is the world's third longest river and the longest to flow entirely within one country. It is also Asia's longest river. Yangtze is the longest river of Asia continent. The river basin of Yangtze houses 1/3 of the population of China. Two origins of Yangtze River has been suggested. Traditionally, the government of China recognized the Taotu tributary located in the Tangula mountain as the source of the river. According to new data recently, however, the source of the Yangtze River is located in the Jari Hill, from where the headwaters of the Damkyu tributary originate. These tributaries and more join to form the mighty Yangtze River, which finally drain into the East China Sea at near Shanghai. Okay, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। Mississippi River. Mississippi is in USA. Source is Lake Itasca in Minnesota. The river system comprises of the Mississippi, Missouri and Jefferson River is regarded as the world's fourth longest river system. Mississippi River begins in north Minnesota, where Lake
Itasca is believed to be the origin of this Mississippi River and drains into the Gulf of Mexico. Or when we regard the Jefferson River as the fourthest source of the Mississippi River, then we get the Mississippi, Missouri, Jefferson River system. Okay, ये तीनों रिवर सिस्टम है. मंगोलिया, चाइना, यहाँ से भी ये फ्लो होती है. नेक्स्ट इज Yenisei River. This is the world's fifth longest river and the largest draining into the Arctic Ocean. Yenisei River. The source of the river is Mangaragin Gol, which is located at the ridge of Dod Nur, Mongolia. The Selenge River is regarded as the headwaters of this river system. The Selenge River is approximate 1000 km long and drain into the Lake Baikal. The Angara River rises from Lake Baikal near Litseyanka and flows through the Oblast of Russia and finally join the Yenisei River near Strelka. Yenisei finally drain into the Kara Sea. And where is it is Kara Sea? Kara Sea in Arctic Ocean. तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको डीप में मैप की हेल्प से पढ़ना. जियो इंजीनियरिंग क्या है? विथ इंटेंसिफाइड डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज, अल्टरनेट मेथड लाइक जियो इंजीनियरिंग कैन बी कंसिडर्ड एंड दिस जियो इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लाइमेट इंजीनियरिंग. और दिस जियो इंजीनियरिंग इज ऑल्सो इट इज द इंटरनेशनल और नो इंटेंशनल, इट इज इंटेंशनल लार्ज स्केल इंटरवेंशन in the Earth's climate system to counter climate change. It also includes like techniques, some remove carbon dioxide from the atmosphere, or technologies like rapidly cool the earth by reflecting solar energy back to space. These are the some technologies considered in geoengineering. तो इसको पढ़ना थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है. यूपीएससी ऐसे टॉपिक उठा के पूछता रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टॉर्म क्वैक क्या है? अभी ये रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है साइंटिस्ट ने. एन अर्थक्वेक लाइक इवेंट. इट इज ए इवेंट लाइक अर्थक्वेक, स्टॉर्म क्वैक दैट कैन हैपन ड्यूरिंग ए हुरिकेन और अदर पावरफुल ओशियन स्टॉर्म. और ये होता क्या एक्चुअल में? व्हाट इज ए स्टॉर्म क्वैक? इट इज ए न्यू जियोफिजिकल फिनोमेना एक्चुअली एंटायरली अननोन टू साइंस. ये हाइब्रिड एंटिटी विच पावरफुल स्टॉर्म such as hurricanes trigger seismic episodes that can rumble for hours or even days. Storm trigger giant waves in the sea which cause another type of wave. These secondary waves then interact with the sea floor only in certain places and that causes the shaking. Storm quakes are limited to places along the edge of continental shelf और ऑन ओशियन बैंक्स. तो आपको एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या है और ओशियन बैंक्स क्या है ये आप पढ़ना जरूर इसके बारे में. व्हेन इज ए स्टॉर्म क्वैक जनरेटेड? ये कुछ जैसे हुरिकेन बिल है, ये एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको. हुरिकेन बिल, ये स्टॉर्म दैट फॉर्म्ड 10 years ago in the Atlantic Ocean and this hurricane bill strengthened into a category 4 hurricane before weakening into a tropical storm and hitting Newfoundland. This storm caused numerous seismic events of the northeast United States and Canadian coast. ओके, तो इस तरीके के कुछ होते हैं हुरिकेन. जैसे आइक था 2008 में, हुरिकेन इरेन आया 2011 में गल्फ ऑफ मैक्सिको और फ्लोरिडा में. इसकी वजह से सेस्मिक इवेंट्स हुए हैं, तो आप इनका बारे में ज़रूर पढ़ना. टॉप 5 लार्जेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया. तो टॉप 5 कौन सी हैं? रामसर वेटलैंड्स, रामसर साइट्स यूपीएससी ज़रूर पूछता है. बायोडाइवर्सिटी 1986, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछता है वो 1972.
ये कुछ लॉज हैं इनसे रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट से, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बायो हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं। सो टॉप 5 लार्जेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया। फर्स्ट इज सुंदरबन वेटलैंड, इट इज इन वेस्ट बंगाल। सेकंड इज वेम्बनाड wetland, it is in Kerala. Third is Chilka Lake, it is in Odisha. Fourth is Koleru Lake, Koleru is in Andhra Pradesh. और लास्ट फिफ्थ इज बैतरकणिका मैनग्रोव्स, इट इज़ इन उड़ीसा। सो आपको ये पता होना चाहिए सुंदरबन वेटलैंड फर्स्ट, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। वेम्बनाड लेक वेटलैंड है, ये एक लेक भी है, केरला में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। बैतरकणिका मैनग्रोव्स है जो ओडिशा में है। और सुंदरबन वेटलैंड इज लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। I am not talking about India. It is largest mangrove forest in the world. The Sundarbans that encompasses hundreds of islands and a maze of rivers, creeks, rivulets in the delta of the river Ganges and Brahmaputra on the Bay of Bengal in India and Bangladesh also. तो ये आप इसको ज़रूर पढ़ना है। अभी रिसेंटली जो है ये सुंदरबन का ही आया है चर्चा में, इसलिए ये टॉपिक आपको दिया है ट्रेंडिंग टॉपिक्स में। ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया हैज डाउनग्रेडेड द आउटलुक ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ टू वेरी पुअर फॉर द फर्स्ट टाइम। द लॉन्ग टर्म आउटलुक for Australia's Great Barrier Reef was downgraded to very poor for the first time by the official agency charged with managing the World Heritage Site. The Great Barrier Reef Marine Park Authority singled out rising sea temperature due to climate change as the biggest threat to the giant organism. However, the threat to the approximate 2,500 kilometers reef were multiple, cumulative and increasing, and in addition to warming seas, agriculture, runoff and coral editing crown of thorns starfish are the rising threats. The Great Barrier Reef located off Australia's east coast, it is the largest coral reef in the world. Great Barrier Reef, it is the largest coral reef in the world. ओके, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कोरल रीफ क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक आता है ट्रेंडिंग में या न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड हमको सब टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछता है। डायरेक्ट पूछेगा तो आपको एक लाइन दे देगा, एक स्टेटमेंट, लेकिन उसमें 2/3 और स्टेटमेंट होते हैं, तो फिर हम उनमें कंफ्यूज होकर ऑप्शन गलत कर देते हैं, तो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो, मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते हो। नेक्स्ट इज अमेजन फायर। Last month, Amazon rainforest have been on fire for the past month. The Amazon rainforest has been on fire, with Brazil declaring a state of emergency in the region. The number of fires in Brazil this year is the highest on record actually. Fires like current one lead to wholesale irreversible changes in the structure and composition of forest ecosystem. These droughts are clearly becoming far more frequent and more severe. There are many are now witnessing the worst fire in living memory, following long periods of consecutive days without rain. Major fires have been caused severe losses, burning dozens of houses, shops, churches and schools to the ground. Okay, तो हाउ डिड द अमेजन फायर स्टार्ट, ये भी पढ़ना है, कैसे हुआ ये। Amazonian forests and other tropical rainforest regions were completely immune to fire because of high moisture content of the undergrowth beneath the protection of the canopy tree cover. But the severe drought and currently a large number of wildfire across northern Brazil have forever changed this perception. ओके, तो इसका रीज़न क्या था वो तो जांच कर रहे होंगे, पता चल जाएगा।
नासा है, नासा ने भी रिलीज़ किए कुछ फ़ोटोज, सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह, उनसे पता चल जाएगा, लेकिन इसके बारे में आप टच में रहना। 40th कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, COP14, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और UNCCD's कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट ऑन सोशल ऑर्गेनिक कार्बन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और किस पे रिलीज हुई है। सोशल ऑर्गेनिक कार्बन रिपोर्ट रिलीज हुई है जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, उसने रिपोर्ट रिलीज की है अभी न्यू दिल्ली में रिसेंटली। इसमें अभी कुछ सोयल ऑर्गेनिक कार्बन का नाम आया है, तो आपको सोयल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है वो पता होने चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ सोयल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है। और ज़्यादा नहीं पता करना चाहते हो तो लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना PDF। हुरिकेन डोरियन, हुरिकेन डोरियन, ये हुरिकेन्स वगैरह के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए। हुरिकेन डोरियन, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन करंटली अफेक्टिंग द बहामास एंड द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हुरिकेन डोरियन इज एसोसिएटेड विथ साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड बहामास। एथेनॉल ब्लेडिंग, एथेनॉल ब्लेडिंग क्या होता है? एथेनॉल ब्लेडिंग ये काफ़ी चर्चा में है और ये पिछले 3-4 साल से इस पे UPSC क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो इसको आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, मेंस में भी आता है इसका क्वेश्चन। गवर्नमेंट एक्चुअली हैज़ हाइक्ड एथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल अलाउड conversion of old sugar into ethanol. The government has approved an increase in the price of ethanol to be procured by public sector oil marketing companies from sugar mills for blending with petrol for the 2019-20 supply year from December 1st. Cabinet Committee on Economic Affairs has also allowed this conversion of old sugar into ethanol. तो ये ऑयल से रिलेटेड है, बायोफ्यूल से रिलेटेड है। अब इसकी क्या कैटेगरीज है बायोफ्यूल्स के, एथेनॉल ब्लेडिंग की, और इस पे एक पॉलिसी भी बनाई है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डीजल बैन अमेंडमेंट है, ये आप पढ़ लेना। बॉन्ड चैलेंज है, ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो आप नीचे PDF दे रखी है। 2 न्यू जिंजर स्पेसीज फाउंड नीलगिरी तार, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो UPSC रेगुलर पूछता है। ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये 2 न्यू जिंजर स्पेसीज है, तो जो न्यू स्पेसीज या कोई न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या फिर कोई न्यू IUCN में रेड डाटा या कोई थ्रेटन्ड में कैटेगराइज में ऐड हुआ है, तो UPSC टाइम पे उनको आपसे अपडेशन पूछता रहता है और एक लाइन उनसे रिलेटेड पुरानी जो थी उसका पुराना जो स्टेटस था उसका दे देता है। तो आप ये नहीं है कि करंट का टॉपिक ही पढ़ लें, आपको करंट में जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। और ये आपको इसमें PDF में कंप्लीट प्रोवाइड कर रखा है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ना, और नहीं तो यहाँ से आप नोट करके गूगल से भी हेल्प लेके पढ़ सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी PDF डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जैसे मर्जी पढ़े, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूर है, स्किप मत करना इन टॉपिक्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते आप। ये ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके मेंस और प्रीलिम्स में आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज नेक्स्ट है जो पॉलिटी इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आएगा, या आर्ट कल्चर से रिलेटेड सारी सीरीज आएगी आपको, जो एक एक करके कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और PDF भी मिल रहा है आपको, PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये देखो ये लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक है टू डाउनलोड PDF, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।